لاہور کے رہائشیوں اور سمندر پار پاکستانیوں کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شاہکار منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا اگرچہ کہ پلاننگ اور اعلان 7 برس پہلے کیا گیا، لیکن ماضی کی حکومت نے خود نمائی اور شو بازی کے لیے ان منصوبوں پہ زیادہ توجہ دی جہاں کک بیکس زیادہ بھاری تھی۔ یہ منصوبہ جو لاہور کی پہچان دریائے راوی ہے، جو اب گند کا ڈھیر بن چکا ہے، اور لاہور کا جو اصل چہرہ ہے، جو لاہور کا جو اصل تعارف تھا، وہ ریور راوی کے اندر جس طرح سے ڈرینیج، گند اور دریا کی اپنی خوبصورتی کو ماند کر کے ایک لاہور کے ماتھے پہ بدنما دھبا بن گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں اس منصوبے کے اندر دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسڈ ود انوویٹو آئیڈیاز اور تمام وہ ایک خوبصورت خواب جو ہر پاکستانی اور خصوصاً لاہور میں بسنے والا شہری اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہے، اس منصوبے سے اس کے خوابوں کی تعبیر جڑی ہے، اور ان خوابوں کو عملی تعبیر دینے کے لیے حکومت پنجاب نے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے بیڑا اٹھایا، اور وزیر اعظم پاکستان اس منصوبے کا 2 ماہ پہلے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، سنگ بنیاد رکھ کے گئے ہیں۔ اس منصوبے کے جو ٹیکنیکل اور کوالٹیز، اس کے ساتھ جڑی تمام گراؤنڈ ریالٹیز، وہ میرے ٹیکنیکل ایکسپرٹس آپ سے بات کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ لاہور میں پیدا ہوئے اور پاکستان بننے کے بعد یہ 4تھی نسل جو لاہور میں پروان چڑھ رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد سے جو لاہور کا حسن، لاہور کا کلچر، لاہور کی ثقافت، لاہور کی سیاحت کے حوالے سے سنتے رہے ہیں، آج کا لاہور جو ہے وہ ان کے بزرگوں کی روایات کا امین نہیں رہا، کیونکہ یہاں جو چیلنجز ہیں وہ ٹریفک پولوشن کے، سموگ کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں ہیپ ہیزرڈ جو گروتھ آف پاپولیشن ہے، لیک آف پلاننگ جو ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر ہو یا اوورال روڈ نیٹ ورک ہو، ہر جگہ ایک آرگنائزڈ سٹرکچر کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے سے جو اس کے حد و حال جو ہیں 28 ارب روپے کی محفوظ سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ 12 لاکھ افراد کو اس منصوبے کے ذریعے روزگار ملے گا۔ 18 لاکھ رہائشی یونٹ جو ہیں اس منصوبے میں بنائے جا رہے ہیں۔ 13 خصوصی مراکز جن میں سپورٹ سٹی، نالج سٹی، ہیلتھ سٹی، کمرشل سٹی سمیت دیگر منصوبے اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ سب سے اہم ماحولیاتی آلودگی پہ قابو پانے کے لیے 60 لاکھ سے زائد پودے لگائے جا رہے ہیں، اور 46 کلومیٹر لمبی جھیل جو ہے وہ
इस मंसूबे का एक सबसे मेन प्राइम फैक्टर है, जिससे जो है ना सिर्फ हमारा इकोसिस्टम बेहतर होगा बल्कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो भी बहाल होगा, और अल्टीमेटली जो लाहौर वाटर बॉर्न डिजीज़ का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है उससे रिहायशियों को निजात मिलेगी। और इस खित्ते के अंदर ये एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जदीद रिहायशी और सियाहती मुकाम बनेगा, और अल्टीमेटली यहाँ से जो इकनॉमिक मोबिलिटी शुरू होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो यहाँ खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जाती उम्रा के अंदर अपने महल तमीर करने में मसरूफ़ अमल रहे, अब रावी अर्बन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है रूडा के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा अमली ख्वाब का तबीर का वो शाहकार सामने आएगा, जिससे अल्टीमेटली जितने वहाँ मीडिया के मेरे भाई बैठे हैं, हमने इनको भी साथ हिस्सेदार बनाना है। और मैं शेख साहब से वहाँ बैठ के ये डिस्कस भी कर रही थी कि इस पूरे मंसूबे में कोई मीडिया सिटी का भी प्लान अंदर दे, ताकि ये हमारे मुस्तकबिल के जो नौजवान हैं जो मीडिया इंडस्ट्री से जिनका रोज़गार वाबस्ता है, कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी इतनी वॉल्यूम में वर्थ हो वो सहाफ़ियों बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूरियात का भी उसमें हम ख्याल रखने जा रहे हैं। एक आखिरी बात, बाकी तफसील से ये बात करेंगे। इस मंसूबे में हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को मिसगाइड किया गया, वहाँ के रिहायशियों को प्रॉपरली इस मंसूबे की अफादियत से आगाह नहीं किया गया, या आगाह रखने के लिए जो मुनासिब तरीक़ाकार था वो वाज़िया नहीं हो सका, जिसकी वजह से गलत फहमियों ने जन्म लिया, और कुछ आपकी मीडिया की आंख ने एहतजाज दिखाए। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो तस्वीर का एक रुख आपने दिखाया, तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो हुकूमत दिखाना चाहती है कि हक़ाइक़ क्या है, और हकीकत पे मबनी जो ये प्रोजेक्ट है उसको अमली तौर पे हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और हुकूमत का काम ही हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। तो मैं शेख साहब आपसे गुजारिश करती हूँ, शेख उस्मान साहब, इमरान साहब से, कि वो वाइस चेयरमैन एलडीए हैं और फोकल पर्सन है रूडा के, कि वो बात करें और आपको तस्वीर का दूसरा रुख बताएं कि किस तरह ये मंसूबा गेम चेंजर है और इस खित्ते की किस्मत बदलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी ये बात करेंगे, उसके बाद सवाल आगे करेंगे। आए इमरान, और इधर जी 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 शुरू करें, आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जी तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इस नोटिस पे और हमारे साथ बैठे हैं इस बात को समझने के लिए कि चीज़ें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। मैं साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैडम का भी कि उन्होंने ख़ास तौर पे ये मौका मुझे दिया यहाँ पे बुलाने के लिए, SFBR साहब का, उनका बहुत शुक्रिया। इस प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, बल्कि ये कई सालों से प्रोजेक्ट हमारी लाइमलाइट में नज़र आ रहा है गवर्नमेंट के सामने कि ये प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पहले समझने वाली ज़रूरी हैं। इस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना क्यों शुरू किया, इस बात को बताना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बहुत ज़्यादा इस बात की कंसर्न है कि पाकिस्तान के फ्यूचर में हम क्या मसले देख रहे हैं, और ये बात मेरे ख्याल में कहीं भी ढकी छुपी नहीं है कि फ्यूचर का सबसे बड़ा मसला पानी का है। हम ये बात करते हैं कि पानी की जंग होएगी फ्यूचर में, हम ये समझ नहीं रहे कि पानी की जंग शुरू हो चुकी हुई है। ये वो दरिया रावी है जो